میرے پیارے دوستوں اور عزیزوں، آج ہم قصہ کربلا کا یہ 14واں پارٹ شروع کریں گے۔ 13ویں پارٹ میں ہم نے امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو بیان کیا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم خدا کی طرف سے نازل ہونے والے عجاب اور شہادتوں کے بعد جو خاندان اہل بیت پہ جو گزرا اس کو دکھانے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت امام پاک کی عمر شریف اس وقت 56 سال 5 ماہ اور 5 دن کی تھی۔ اس صادق جانباز نے اپنے نانا جان کے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کیا، دین حق پر قائم رہ کر اپنا کنبہ اور اپنی جان راہ خدا میں ایسی ثابت قدمی کے ساتھ نظر کی جس کی مثال نہیں ملتی۔ چنانچہ ابن سعد نے اپنے مردوں کی نماز جنازہ پڑھی اور ان کو دفن کیا، لیکن حضرت امام اور آپ کے رفقا جن کی تعداد 72 تھی اور ان میں 20 خاندان بنی ہاشم کے چشم و چراغ تھے، ان سب شہیدوں کو بے غور و کفن پڑا رہنے دیا اور ان کے سروں کو ابن زیاد کے پاس بھیج دیا۔ 13 سر بنو کندہ کے پاس تھے اور ان کا سردار قیس ابن اشاس تھا۔ 20 سر بنو حوازن کے پاس تھے اور ان کے ساتھ شمر جھلجوشن تھا۔ 17 سر بنو تمیم اور 16 سر بنو اسد اور 7 بنو مزہج کے پاس تھے۔ یزید کے لشکریوں نے لشکر امام حسین کے اونٹ آپ کی شہادت کے روز پکڑ لیے تھے، پھر ان کو ذبح کیا اور پکایا تو وہ اندرائن کے پھل کی طرح کروے ہو گئے اور ان کو کوئی نہ کھا سکا۔ چنانچہ حضرت بسرا اجویہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب حضرت حسین شہید کیے گئے تو آسمان سے خون برسا۔ صبح کو ہمارے مٹکے گھڑے اور سارے برتن خون سے بھرے ہوئے تھے۔ حضرت زہری فرماتے ہیں کہ مجھے خبر پہنچی کہ جس دن حضرت حسین شہید کیے گئے اس دن بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے تازہ خون پایا جاتا تھا۔ حضرت ام حبان فرماتی ہے، جس دن حضرت حسین شہید کیے گئے اس دن سے ہم پر 3 روز تک اندھیرا رہا، اور جس شخص نے منہ پر زعفران ملا اس کا منہ جل گیا اور بیت المقدس کے پتھروں کے نیچے تازہ خون پایا گیا۔ آسمان سیاہ ہو گیا اور دن میں ستارے نظر آنے لگے، اور حضرت امام حسین کی شہادت پر آسمان سرخ ہو گیا اور سورج کو گہن ہو گیا۔ جب حضرت امام حسین شہید کیے گئے تو 7 دن تک دنیا تاریک رہی، دیواروں پر دھوپ کا رنگ جعفرانی رہا اور ستارے ایک دوسرے پر ٹوٹ کر گرتے رہے، اور آپ کی شہادت یوم عاشورہ میں ہوئی۔ اس دن سورج کو گہن لگ گیا، 6 ماہ تک برابر آسمان کے کنارے سرخ رہے، پھر وہ سرخی تو جاتی رہی مگر افق کی سرخی اب تک برابر موجود ہے جو اس واقعہ سے پہلے نہیں دیکھی جاتی تھی۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں روتے ہوئے دیکھا ہے، اور آپ کے سر مبارک اور ریش افدس پر گرد و غبار ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کیا حال ہے؟ فرمایا، میں ابھی حسین کی شہادت گاہ پر گیا تھا۔ بی بی ام سلمہ نے وہ مٹی سے بھری شیشی دیکھی جو رسول کریم نے ان کو یہ تاکید کر کے دی تھی کہ یہ کربلا کی مٹی ہے، جس دن یہ مٹی سرخ لال ہو جائے تو سمجھ لینا میرا حسین شہید کر دیا گیا۔ بی بی ام سلمہ نے وہ مٹی دیکھی جو سرخ ہو چکی تھی۔ ان ظالموں نے ظالم حکمرانوں کے تحت حسین کو قتل کر دیا اور قرآن کے حکم کی نافرمانی کر دی۔ آسمان پر خونی لفظوں سے لکھا تھا، اترجو امتون قتلت حسینہ شفاعت زدہ یوم الحسابی، جو میرے اہل بیت پر ظلم کرے گا اس پر شفاعت حرام کر دی گئی۔ وہ ان اللہ حرم علیہ الجنہ، اور اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی۔ کیا وہ طبقہ جس نے قتل حسین کیا ہو کیا اب بھی مسلمان یا مومن ہونے کا دم بھرتا ہے؟ ہرگز شفاعت نہ ہوگی، کیونکہ شفاعت تو حسین کے نانا کے صدقے میں ہی ہوگی۔ سخت عذاب میں جھونک دیے جائیں گے یہ لوگ۔ الغرض قافلہ روانہ ہوا۔ ابن زیاد نے کئی دن اسیران کربلا آقا علیہ السلام کے گلشن رسالت کے ان پھولوں کو قیدی رکھا اور پھر سوئے دمشق اس قافلے کو روانہ کیا۔
उस पूरे काफिले में सिर्फ एक मर्द बच गए थे, फर्जंदे हुसैन इमाम जैनुल आबेदीन, और वो इसलिए क्योंकि वो बीमार थे उस वक्त। बाकी शहजादियां थीं सैयदा कायनात की, आका के गुलशन की कलियां थीं। रास्ते में चलते चलते यजीदियों के पास पानी खत्म हो गया। यजीदी काफिले के सरबराह ने काफिला रोक दिया पानी का इंतजाम के लिए। धूप बहुत तेज थी। उसने अपने लिए खेमा तैयार करवाया, क्योंकि पानी बहुत दूर से लाना था। पानी बहुत दूर था। बस खेमे के साए में बैठ गया और इस गर्मी में तपते जलते सूरज में हुजूर की शहजादियों को बिठा दिया। पूरा काफिला इसी हाल में। पानी का इंतजाम तो यजीदी कौम के लिए किया जा रहा है, जबकि खानदाने अहले बैत को इस तपती धूप में सख्त गर्मी में बिठाया गया है। जब आका हुसैन की शहजादी सैयदा सकीना ने थोड़ी दूर में देखा कि एक छोटा सा दरख्त है, ये मासूम बच्ची वहां गई और मिट्टी का सरहाना बना के वहीं पे लेट गई, और लेटे लेटे आंख लग गई, हल्की नींद आ गई। यजीदी फौज का पानी आया, सब यजीदी लोगों ने पिया और अब काफिला रवाना हुआ। शहजादी सकीना वहीं पे रह गई। ये लोग थोड़ी ही दूरी पर गया था कि जिस शख्स के हाथ में वो निजा था, जिस पे इमाम हुसैन का सरे अनवर रखा था, वो उसके हाथ से छूट गया और वहीं पे गड़ गया। उन्होंने कोशिश की उसको उखाड़ने की, पर वो नहीं निकला। इमाम हुसैन का सर आगे जाने के लिए तैयार ही नहीं था कि जैसे कोई गैबी ताकत ने उसे थाम लिया हो। सबने अलग अलग कोशिश करके देखी, मगर कुछ न हुआ। तमाम कोशिशों के बाद यजीदी सिपाही इमाम जैनुल आबेदीन के पास गए और उनको ये बात बताई। सैयदना इमाम जैनुल आबेदीन अपनी फूफी सैयदना ज़ैनब के पास आए और कहा, फूफी जान, आप जरा ऊंटों के खजाबों में शहजादों और शहजादियों को गिन लें। शायद बाबा का कोई शहजादा या शहजादी रह गई है, इसलिए बाबा का सरे अनवर आगे नहीं जा रहा। सैयदा ज़ैनब ने एक एक करके सबको पुकारा। सब हाजिर थे, पर जब शहजादी सकीना का नाम लिया तो आगे से कोई जवाब नहीं आया। आपने बार बार सकीना नाम लिया। जब जवाब नहीं आया तो वो तड़प उठी, परेशान हो गई, अपने खजाबे से उतरी और रोते हुए कहने लगी, मेरे हुसैन की सकीना कहीं पे रह गई है। शाम का वक्त हो चुका था, अंधेरा शुरू हो गया था। वो ये कहते हुए पीछे जा रही थी कि शायद जहां पर काफिला रुका था वहीं पे सकीना रह गई हो। जब वहां पहुंची तो क्या देखती हैं, एक नकाब पोश खातून सैयदा सकीना को गोद में लेके बैठी है। वो खातून सैयदा सकीना को चूम रही है और शहजादी सकीना उस खातून को बड़ी मासूमियत से करबला की पूरी कहानी सुना रही है, जो उन पे जुल्मों सितम हुए एक एक करके बताती जाती है और रोती जाती है कि कैसे शिमर लयीन ने उसकी बालियां खींची और तमाचे मारे। बाबा के साथ, भैया के साथ जो जुल्म हुए सब बताती हैं, और वो नकाब पोश खातून शहजादी को कभी चूमती हैं, कभी रोती हैं। इतने में सैयदा ज़ैनब करीब पहुंची और कहती हैं, ए नकाब पोश खातून, अल्लाह आपका भला करे, आपने हमारी बच्ची को संभाल लिया, हम पर बड़ा एहसान किया है, अल्लाह आपको अज्र दे। ये तो बताए कि आप हैं कौन जो इतना एहसान किया। उस खातून ने चेहरे से नकाब उठाते हुए फरमाया, ज़ैनब क्या भूल गई हो, मैं तुम्हारी मां फातिमा हूं। हुसैन के सीने पे सोने वाली शहजादी सकीना तन्हा रह गई थी, काफिले से बिछड़ गई थी, तो मैं कब्र में न रह सकी। ये देखकर मेरे दिल ने कहा कि मैं जाके सकीना को संभाल लूं। तीनों उस मकाम पर बहुत रोए। अब जबकि सैयदा ज़ैनब आ गई थी तो बीबी फातिमा आंखों से ओझल हो गई। वो तो एक मुजस्सिमा था, एक रूह थी सैयदा फातिमा की, जो वापस चली गई। सैयदा ज़ैनब सकीना को लेकर वापस काफिले में आ गई। काफिला आगे बढ़ा। काफिला हलफ के रास्ते से होते हुए हमस और हमा के रास्ते से चला। जिस शहर से भी ये यजीदी काफिला गुजरता था, कमबख्तों ने जश्न का माहौल बना रखा था यजीदी फौज की आमद का। हर शहर में शादियाने बजते थे, बाजे बजते थे, इस्तकबाल की पूरी तैयारी थी। यजीद की फतेह के जश्न मनाए जा रहे थे और इस जश्न के माहौल में हजूर की शहजादियों को कैदी बनाकर गुजारा जाता था। बहुत बुरा हाल बनाया था अहले बैत का।
कुछ सरों को नेज़ों पे रखा था। इस तरह से ये लोग दमिश्क पहुंचे। यहां दमिश्क में सारा शहर यजीद की फतेह के बाद जश्न में मसरूफ था। बहुत से लोगों को तो ये तक नहीं पता था कि ये जो कैदी बनाकर लाए गए हैं आखिर हैं कौन, कि ये जो सर नेज़ों पर हैं कौन हैं। उनको तो बस इतना बताया गया था कि कुछ कुछ यजीद की हुकूमत के खिलाफ बागी थे, उन्होंने बगावत कर दी थी, इसीलिए उनको कुचल दिया गया है, बगावत को खत्म कर दिया गया है। तो ये बागियों के सरों को नेज़ों पे रखा गया है और ये जो औरतें हैं इनको कैदी बनाकर कनीजे बना के लाया जा रहा है। किसी को खबर न थी कि ये सब बागी नहीं, सारी कायनात के मालिक हैं। इस उम्मत को जो दीन और ईमान मिला है इन्हीं की बदौलत है और क़यामत के दिन शफात करने वाले मालिक हैं। दुनिया के भी और उक़बा के भी ये सब अवाम को न मालूम था, कोई खबर न थी। काफिला आकर एक बाजार के चौक में रुक गया। दमिश्क की औरतें छतों से ये सब तमाशा देख रही थी। पास ही में से एक खातून भी छत से देख रही थी। उसने अपने खादिमों को इन कैदियों के पास भेजा और कहा, जाके पूछो इन कैदियों से कि क्या इनको किसी किसी चीज की जरूरत है। खादिमों ने आकर पूछा तो कहा कि पानी ही पिला दे। फिर उस खातून ने कुछ खजूरें भेजी। जो कुछ भी उससे मयस्सर हो सका उसने किया। जो कुछ भी उनकी जरूरतें थी वो पूरी करती गई। सैयदा ज़ैनब ने पैगाम देके पूछा उस खातून से कि आखिर कौन हो। इतने में वो खुद ही नीचे आ गई खातून। इस पूरे सफरे दमिश्क में कोई तमाशा देखने के सिवा कुछ न करता था। आखिर तुम कौन हो? तुमने हमारे साथ ऐसी भलाई और नेकी व एहसान क्यों किया है? उस खातून ने जवाब दिया कि मैं आप लोगों को तो नहीं जानती, पर मैंने एक जमाना मदीना में सैयदा फातिमा तुझ ज़हरा की खिदमत में गुजारा है। उस वक्त मैं जवान थी और मैंने वो वक्त फातिमा बिनते रसूल अल्लाह की नौकरी में गुजारा है। बहुत पुरानी बात है, जब मैं मदीना से रुखसत होने लगी तो मैंने सैयदा फातिमा से कहा था कि बीबी मुझे कोई नसीहत कर दें। तो मुझे उन्होंने कहा था कि दमिश्क जा रही हो सलामत रहना, और तुम्हारे लिए एक ही नसीहत है कि कभी कैदी मिले तो उनसे अच्छा सलूक करना, उनकी भलाई कर देना। मुझे तो ये भी नहीं पता आप लोग कौन हैं। मैं बस अपनी सैयदा की वसीयत पे अमल कर रही हूं। सैयदा ज़ैनब की आंखों से आंसू जार जार निकलने लगे। रोते हुए कहने लगी कि बीबी बताओ, इसके बदले मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूं? इस एहसान के बदले में क्या चाहती हो? उस खातून ने कहा कि बस एक दुआ ये कर दें कि जब मैं सैयदा फातिमा की नौकरी करती थी तब उनके 2 शहजादे थे, हसन और हुसैन, और एक शहजादी सैयदा ज़ैनब थी। तब उनको बचपन में देखा था। मैंने सुना है सैयदा कायनात फातिमा और हसन मुस्तबा तो विसाल फरमा गए, लेकिन अब मेरी दुआ है कि उनके शहजादे हुसैन को देख लूं और सैयदा ज़ैनब को। सैयदा ज़ैनब रोते हुए कहने लगी कि बीबी तेरी दुआ कबूल हो गई। ये जो नेज़े पे है ये सरे हुसैन है और ये कैदी सैयदा ज़ैनब। इस हाल में देखकर वो खातून बहुत रोई। आगे बढ़े तो यहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, साहल बिन साद साइदी। उनका बयान है कि मैं किसी काम से बैतुल मक़दस जा रहा था। जब दमिश्क पहुंचा तो देखा कि वहां ईद का समा था। हर तरफ शामियाने थे, शादियाने थे, जैसे कोई ईद हो, जुलूस थे। तो मैंने लोगों से पूछा कि लगता है आज तुम्हारी कोई इलाकाई ईद है, कोई बड़ी खुशी है? सारे शहर को तुमने दुल्हन की तरह क्यों सजा रखा है? लोगों से जवाब मिला कि यहां कुछ बागी थे जिन्होंने यजीद की हुकूमत के खिलाफ बगावत की थी, और ये नेज़ों पे बागियों के सर हैं, और ये कैदी उनके खानदानी हैं जिनको कनीजें बनाकर लाया गया है। माजल्लाह। उन्होंने आगे जाकर देखा कि आखिर हैं कौन। उन्होंने तो इमाम हुसैन को कभी रसूल खुदा के साथ खेलते और जुबान मुस्तफा को चूसते गुजरे दौर में देखा था। ध्यान से कटे खून ज्यादा सरे अनवर को देखकर बोले, इनकी शक्ल तो मुझे हुसैन की तरह नजर आती है। पास में ही एक शामी खड़ा था। उसने कहा, तुमने पहचाना नहीं? ये खुद हुसैन ही है। सुनते ही उनकी चीख निकल गई। रोते हुए कहने लगे, ये काफिला कहां जा रहा है? और फिर ये काफिले के साथ साथ दरबार यजीद तक गया। यजीद बदबख्त शराब में डूबा शतरंज खेल रहा था। काफिला जब दरबार में हाजिर हुआ तो सामने इमाम जैनुल आबिदीन और बाकी सबको खड़ा कर दिया गया। उसने कहा कि मुझे इन सब के नाम एक एक करके बताओ।
शहजादी सकीना हाथों से अपना चेहरा छुपाती है तो यजीद बदबख्त पूछता है, ये बच्ची कौन है? किसी ने बताया ये इमाम हुसैन की शहजादी है। यजीद फिर उस बच्ची से ही पूछने लगता है कि तुम कौन हो? इतने में इमाम जैनुल आबिदीन बोले कि बदबख्त इसके गले की रस्सी बहुत सख्त बंधी है, इसलिए ये बोल नहीं पा रही। इमाम जैनुल आबिदीन ने ही शहजादी के गले के फंदे को थोड़ा ढीला किया। शहजादी से फिर पूछा कि तुम चेहरा क्यों छुपा रही हो? शहजादी ने जवाब दिया कि तुम जैसे बदबख्तों से चेहरा न छुपाऊं तो क्या करूं मैं? यजीद ने कहा कि सकीना कैसा लगा हमारा मंजर? शहजादी ने कहा, ये तो हमने देख लिया। कल कयामत के दिन जो हमारा मंजर होगा उसकी भी तैयारी कर लो बदबख्तों। सबको कैदी बना लिया गया और इमाम हुसैन का सर और बाकी शोहदाओं के सरों को अलग रख दिया गया। फिर कुछ वक्त गुजर जाने के बाद कुछ ऐसे वाकयात हुए तो यजीद ने सोचा कि इस तरह इन सरों को यहां रखना ठीक नहीं और अहले बैत को भी यहां रखना ठीक नहीं। कहीं ऐसा न हो मेरी हुकूमत को किसी मुश्किल का सामना करना पड़े। उसने फैसला कर लिया कि इन लोगों को वापस मदीना भेज दिया जाए। इमाम जैनुल आबिदीन से कहा गया कि सारे काफिले को जमा कर लें और मदीना चले जाए। जैनुल आबिदीन ने कहा, हम चले जाएंगे, मगर हमारी कुछ चीजें जो तुमने लूट ली थीं वो वापस दे दो। यजीद पलीद ने कहा, लूटा हुआ सामान वापस नहीं होता। इतने में एक शामी आया वहां पर और इमाम हुसैन की एक शहजादी फातिमा की तरफ इशारा करके कहा कि ये वाली कनीज मुझे दे दे यजीद। तो फातिमा बिनते हुसैन चीख उठी और कहने लगी कि फूफी जान, क्या अब हमको कनीज भी बनाया जाएगा? सैयदा ज़ैनब ने कहा, ए पलीद यजीद, जब तक तुम मेरे नाना के नाम का कलिमा पढ़ते हो तब तक तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये हराम है। कहने लगा, मुझे सब इख्तियार है, मैं कर सकता हूं। वो शामी ने जब ये सब सुना तो वो समझ गया कि ये तो शहजादियां रसूल पाक की हैं। उसने तुरंत यजीद को चिल्लाकर कहा, ए यजीद, ये हाल बना रखा है तूने। अहले बैत का मुझे तो लगा था कि ये कोई रूम का लूटा हुआ काफिला है और ये कनीजें हैं। तुझ पे लानत हो, तूने अहले बैत का ये हाल कर रखा है, लाख लाख लानत। सुनकर यजीद गुस्से में आ गया। उसने तुरंत हुक्म दिया कि इसका सर कलम कर दो। उसके बाद इमाम जैनुल आबिदीन ने यजीद से कहा, सब कुछ रख लो, बस कुछ चादरें हैं जो हमें सैयदा फातिमा ने दी थी, अपने हाथ से बुनकर, और गुलू बंद है जो अम्मा फातिमा ने इन शहजादियों को पहनाया था, वो सब वापस कर दो। अलगर्ज उनको वो चीजें वापस मिली और ये लूटा हुआ काफिला 3 दिन इमाम हुसैन की कब्र पे कयाम करके मदीना वापस हुआ। जब मदीने के बाहर पहुंचे तो मदीने में दाखिल होने की सकत बाकी न बची थी। बशीर नामी खादिम को भेजा और कहा, अहले मदीना को खबर कर दो कि लूटे हुए अहले बैत आ रहे हैं। जब अहले मदीना सबको ये खबर मिली तो कयामत जैसा मंजर हो गया। सब बहुत गमगीन हुए, एक मातम सा छा गया। अहले मदीना कहते हैं, ऐसी कयामत तब आई थी जब रसूल पाक का विसाल हुआ था, या तो आज आई है जब ये अहले बैत का लुटा हुआ काफिला वापस आया है। सब लोग बहुत रोए गिड़गिड़ाए और सब लोग रोते चीखते चिल्लाते रसूल पाक के रोजे पे पहुंचे। इमाम जैनुल आबिदीन और सैयदा ज़ैनब रसूल पाक के रोजे पर आप हजूर से कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आपका हुसैन करबला में कत्ल कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपने जज्बात हमारे सामने रखें। हम इस्लामी तारीख के ऐसे ही वीडियोस आपके सामने पेश करते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।